সেটা আমরা 24 এবং আজকে 2025-এ তার ধারাবাহিকতার যে পরিচয় আজকে কিন্তু এই দশরথ দেব স্পোর্টস কমপ্লেক্সে আমরা বাদারঘাটে দেখতে পাচ্ছি। আজকে এই অনুষ্ঠানে যে উপস্থিত আমাদের মঞ্চে ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী টিঙ্কু রায় মহোদয়, এই দুটো ডিপার্টমেন্টই উনি দেখছেন। আমি ওনাকে ধন্যবাদ দিতে চাই যে একজন স্পোর্টস মিনিস্টার হয়ে এবং সমাজের জন্য যে কল্যাণ, তার জন্য এটা কিন্তু এমনিতে হয় না যতক্ষণ ধরে ভিতর থেকে না আসবে। এবং যেভাবে আমি গত 3 বছর ধরে এই যে প্যারা অলিম্পিক যে গেমস ত্রিপুরার, সেটা আমি উপলব্ধি করতে পারছি। এবং আমি এটাও দেখেছি প্রতি বছর অন্তর অন্তর এর কিন্তু শ্রীবৃদ্ধিও ঘটছে। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন এই এলাকার সবার আদরণীয় এবং জনপ্রিয় বিধায়িকা শ্রীমতী মীনারানী সরকার মহোদয়া। এখানে আজকে আমাদের 2 দপ্তরের সেক্রেটারি মহোদয়রা উপস্থিত আছেন, ডক্টর প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, শ্রী তাপস রায় মহোদয়। ওনাদের বক্তব্য আমাদের সামনে বলেছেন। তাছাড়া এখানে সোশিয়াল ওয়েলফেয়ারের এবং সোশিয়াল এডুকেশনের যিনি ডাইরেক্টর শ্রী টি.কে. দাস মহোদয় উপস্থিত আছেন। এবং আমরা যখন ইউথ অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড স্পোর্টসে আমি যখন ডাইরেক্টর হিসাবে এখানে যিনি উপস্থিত আছেন এল লালং মহোদয়, ওনাকে দেওয়ার আগে আমি ওনাকে বলেছি যে আপনাকে এই দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু স্পোর্টসকে কিন্তু সামনের দিকে আপনার এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কারণ স্পোর্টসের মধ্যে আমরা দেখেছি যে বিগত বছরগুলোতে 2018-র আগে এবং তারও আগে স্পোর্টস আজকে আমরা রাজনীতির মধ্যে আছি ঠিকই, কিন্তু এর থেকে বড় রাজনীতিবিদ একজন পলিউটেড রাজনীতিবিদ। কাজে এই জায়গায় আপনি খুব সাবধান। বিভিন্ন সংগঠনের নামে আপনাকে প্রেশার করতে পারে, কিন্তু হোয়াট ইউ শুড রিয়েলাইজ অ্যান্ড অন দ্য বেসিস অফ দ্যাট ইউ শুড গো ফরওয়ার্ড। এখানে উপস্থিত আছেন ডক্টর দীপা কর্মকার, সবার পরিচিত মুখ, শুধু ত্রিপুরায় নয়, ভারতবর্ষে এবং সারা পৃথিবীর মধ্যে, এবং পদ্মশ্রী, অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি। যখন বলা হয়েছে যে অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন ত্রিপুরাতে কি একটা অবস্থা ছিল, যেটা আমি ওনাকে ধন্যবাদ দেব कर्नल साहब को, जो उन्होंने आके ये समझ गया जो क्या क्या यहाँ पर हुआ है। दुकानदारी अपना चला रहा था, वो बता रहे थे। भगवानेर अशेष कृपा आज के आमार बर्तमान जे अवस्थान হয়তো ওনারই নির্দেশে এই ধরনের যে পলিউটেড এনভায়রনমেন্ট ইন ইচ অ্যান্ড এভরি ম্যাটার্স, সেটাকে সাফাই যে অভিযান আমরা বলি না, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বলেন সাফাই অভিযান, এ তো রাস্তার সাফাই অভিযান, কিন্তু মেন্টালিও সাফাই অভিযান করা প্রয়োজন এবং এই ধরনের ব্যক্তিদেরও সাফাই করা প্রয়োজন। কারণ তারা যারা প্লেয়ার আছে তাদেরকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় না, তারা তাদের দোকানদারি চালাতে হয় বেস্টেড ইন্টারেস্টে। তো এইগুলো আমরা করেছি। এবং এখানে উপস্থিত আছেন कर्नल अमरीक सिंह महोदय, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर पैरा ओलंपिक। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, कितना कम समय में वो आके द पल्स, मैं खुद डॉक्टर हूँ, पल्स देख के अगर रोग क्या यहाँ पर हो रहा है ये अगर समझ जाए तो इसका मतलब डायग्नोसिस इज़ परफेक्ट
एंड हिज ट्रीटमेंट वुड बी गुड एनफ। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अगरतला में आप आए हो, त्रिपुरा में आए हो, मेरे तरफ ऑन बिहाफ ऑफ द त्रिपुरा आई वेलकम यू। और जिस तरह आपने यहाँ पर एनकरेज सबको किए हो, क्योंकि सब आदमी चाहते हैं, एनकरेजमेंट चाहते हैं, बूस्ट अप। आपने बहुत सारे चीज़ बताया और मैं उम्मीद करता हूँ इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड ऑल्सो। इट शुड नॉट बी merely only sentences. I am sure you will do, because your body language and your way of speaking out, I hope that you will do it. जब ये होगा तो हम लोग तो खुश होंगे, और ऐसा होना भी चाहिए। दूर होने से बहुत लोगों को क्या क्या हो रहा है कुछ समझ में भी नहीं आता। एक बात मुझे अभी भी याद है, कहते हैं जंगल में मयूर नाचा कौन देखा। जंगल में मयूर नाचा कौन देखा, इसलिए दिखाना चाहिए कभी कभी। तो ऐसा व्यक्ति अगर बाहर से आए तब जाके पता लगेगा, और ये इन्फॉर्मेशन हमेशा देना चाहिए जहाँ पर एग्जैक्टली देना चाहिए। मैं जानता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी ये खेल कूद को लेके कितना उनमें मैंने सभी, आप लोग देखे हो कुछ दिन पहले भी जो स्पोर्ट्स वीमेन है, जो मैंने दिव्यांग है, क्रिकेट में चैंपियन हुए। और माननीय प्रधानमंत्री जी इन लोगों के साथ मैंने जैसे बात किए थे, तो आज ये देख के आज जो यहाँ दिव्यांगजन है, इससे काफ़ी इंस्पिरेशन होगा। इंस्पिरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई कैन डू इट, I am strong enough, I am stronger, I can do it। मैं एक कर्नल साहब को मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग कभी कभी हम लोग समझते हैं जो हम लोग नॉर्मल आदमी हैं, लेकिन हम लोग भी दिव्यांग है किसी ना किसी तरह। मैं बता रहा हूँ आपको एक कहानी। मैं जब बैडमिंटन खेल रहा था, पहले तो एथलीट थे, मैं नेशनल मीट गया क्रॉस कंट्री 10 किलोमीटर। तो सडनली यहाँ पर ही जब सिलेक्शन हो रहा था नेशनली, आई वॉज प्लेइंग इन फाइनल। जस्ट आफ्टर फर्स्ट गेम आई वॉन। इन द सेकेंड गेम सडनली आई गॉट सम साउंड फ्रॉम माई लेफ्ट लेग एंड आई फेल डाउन। व्हाट हैपेंड? बिकॉज आई एम ए डॉक्टर, some people rush to me, massaging. I mean, don't do it. Complete tendinitis rupture. ये बोईशाखी लेके जब मेरा ट्रीटमेंट हुआ, ग्राफ्टिंग भी हुआ, कर्नल साहब खुद भी बोल रहे थे कुछ दिन पहले उनका भी एक्सीडेंट हुआ। तो ये जब वो बोईशाखी लेके 3-4 महीना, मेरे ख्याल से और भी हो सकता है ज़्यादा भी हो, ख्याल याद नहीं है, ये बोईशाखी लेके जब हम चल रहे थे, क्या फीलिंग्स होता है, क्या समस्या होता है, इन लोगों को देख के ये आज फील करता हूँ। तो सभी के साथ कभी कभी कुछ लोग मेंटली जो हम लोग जो विधानसभा में हम लोग डिसीजन लिए हैं, मेंटली चैलेंज पर्सन जो है, इन लोगों को हम लोग हेल्प करेंगे। वो पूरा विषय मेरा पूर्ववर्ती जो वक्ता उन्होंने कहा, टिंकू राय जी। तो मेंटली कभी कभी डिप्रेशन में बहुत लोग आ जाते हैं। किसी को सिजोफ्रेनिया हो सकता है, किसी को पोलियो से भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है ये सारा। तो इनको जो हेल्प, मतलब हम लोग का सरकार कितना सेंसिटिव है इससे पता लगता है। और बाकी पूरा विषय हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब ने बताया आपके सामने। आपको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ ओलंपिक स्टार्ट किया। क्यों स्टार्ट किया? छत्तीसगढ़ में माओ वाले, ये जो कम्युनिस्ट माओ, इन लोगों के कारण सालों साल बर्बाद हो रहा था। वहाँ कितना लोग
वहाँ पर खून हुआ है तार हिसाब भी नहीं है। वहाँ पर नॉर्मल पेशेंट, नॉर्मल पर्सन, इनोसेंट पीपल, बीएसएफ, पुलिस, सीआरपी, इवन पॉलिटिकल पर्सन्स वेर किल्ड। और हम लोग देखते थे कब क्या होगा, बम ब्लास्टिंग इत्यादि चलता था वहाँ। और खाली छत्तीसगढ़ में नहीं है, इसका ये जाता है एकदम मध्य प्रदेश होके, फिर महाराष्ट्र से उड़ीसा, इवन आपका ये अभी जो बिहार टूटने के बाद जो अंश हुआ है वहाँ पर भी पहुँच गया। तो अब हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी ने क्या कहा कि हम इन लोगों को छोड़ने वाला नहीं है, ये हम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। और आप देखो किस तरह इन लोगों को ख़त्म, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, और आने वाले दिन जो बाकी है उनको भी ख़त्म करना है। हम लोग भी इस मार्गदर्शन में हम लोग चलते हैं। जो टेररिज्म नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में क्या था, पहले कोई डर से भी नहीं आता था। त्रिपुरा में भी NLFTA, TTF इस तरह था यहाँ पर, अभी सरेंडर किया। और हम लोग जैसे जेल में पहले सेंट्रल जेल बोलते थे, सेंट्रल जेल, लेकिन अभी माननीय प्रधानमंत्री जी उनका नाम चेंज कर दिया, जो शोधनागार, मतलब आपको संशोधन होने के लिए संशोधनागार, मतलब आपको जो भी काम आप लोग करते हो, कोई भी क्राइम करते हो, तब जाके आप, ये जेल नहीं है, ये माइंडसेट, ताकि अपना दिमाग संतुलन रहे और अपने आप को सुधारो। इनका नाम है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो ये जो अभी टेररिस्ट जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में सरेंडर किया है, ये भी त्रिपुरा में खास करके हम लोग 250 करोड़ माननीय प्रधानमंत्री जी अभी पैकेज दिए हैं इन लोगों का रिहेबिलिटेशन के लिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पैकेज के लिए नहीं है, आपको अब समझ में आया कि हम जिस रास्ते पर चल रहे थे ये रास्ता ठीक नहीं है। इसलिए पहले तो बातचीत, पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के पहले अटल जी के टाइम में कोशिश किए थे, उसके पहले तो कोई चेष्टा ही नहीं किया, बोला अरे ये तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। और कांग्रेस के टाइम में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को तो ये लोग गिनती में नहीं लाते थे। त्रिपुरा कहाँ है ये भी किसी को नहीं मालूम था। हम लोग जो पढ़ने बाहर जाते थे, कहाँ से आए हो? त्रिपुरा से। त्रिपुरा से मतलब कहाँ है? ये आसाम में है क्या, बांग्लादेश में है? इस तरह। तो इस सिचुएशन में एक्ट ईस्ट पॉलिसी में उन्होंने जिस तरह एक तरफ डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आज उन्होंने क्या दिया? हीरा मॉडल दिया। हीरा मतलब H फॉर नेशनल हाईवे, I फॉर इंटरनेट, R फॉर रेलवे और A फॉर एयरवेज। सभी जगह अब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में एक स्टेट के साथ दूसरा स्टेट का कनेक्शन आ गया। मैं जब चीफ मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव में जाता हूं तो ये जो अष्टलक्ष्मी नाम दिए, पहले 7 स्टेट था नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, माननीय प्रधानमंत्री जी सिक्किम को एक साथ करने के बाद उन्होंने कहा कि अष्टलक्ष्मी। अब नाम देने से भी आप सोचो, ये भी कितना बढ़िया नाम है। नाम का भी उसका जो इम्पोर्टेंस, जे लक्ष्मी का जो गॉडेस यहाँ पर इतना माने पोटेंशियल है देश का जीडीपी बढ़ाने के लिए, ये तब ने उन्होंने कहा गॉडेस लक्ष्मी के साथ तुलना की है। तो अभी हम लोग ये अष्टलक्ष्मी के आप देखिए कितना डेवलप हुआ। और मणिपुर कहिए, आसाम बोलिए, किसी भी आप स्टेट के लिए, और त्रिपुरा को तो छोड़िए, हम लोग के यहाँ से इतना अच्छा प्लेयर्स बन रहा है। लेकिन सरकार खेलो इंडिया स्टार्ट किया, आप जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। हम लोग खेलो त्रिपुरा स्टार्ट किए। अभी यहाँ पर पारा ओलंपिक भी हम लोग स्टार्ट किए। लेकिन जिस तरह हेल्प हम लोग कर रहे हैं ये अनाफ नहीं है। मैं यहाँ पर जो प्लेयर्स है, मैं इन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ
मैं थ्रू इंटरप्रेटर, जिन्होंने साइन लैंग्वेज की तरह यूज़ करके इन लोगों को समझा पाएंगे। यही है कि आपको हम लोग सब चीज़ देंगे, लेकिन आपको ये महसूस होना चाहिए, यस आई कैन डू इट। मैं साधारण जो जनता है, मैं भी वैसा ही हूँ। ये जो फीलिंग जब आएगा, ये हम लोग देखते हैं कभी कभी सोशल मीडिया में, जो एक व्यक्ति को 2 हाथ नहीं है, पेट से लिख रहा है, और जिस पेट से लिख रहा है ये ऐसा माने उनका जो हम लोग के सामने पेश कर रहा है वो बहुत ही माने प्रशंसनीय है। बहुत सारे चीज़ इतना कभी हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। इसका मतलब क्या है, इवन आप सोचो राइट हैंड, अगर हम लोग राइट हैंड से काम करते हैं, हम राइट हैंड से काम करते हैं, लेकिन हमेशा, या जो लेफ्ट हैंडर है लेफ्ट हैंडर से काम करते हैं, तो दूसरा हैंड का यूज़ ही नहीं करते हैं हम लोग। जो राइट हैंड से हम काम कर सकते थे जितना शक्ति से, वो लेफ्ट हैंड हम नहीं करते। इसीलिए दोनों हाथ का मजबूती होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह हैंडीकैप्ड हम जो बताया मैंने, जो हम लोग किसी ना किसी तरह हम लोग दिव्यांग है। तो जिस व्यक्ति का 2 पैर नहीं है, वो जब सोचा नहीं मैं पैर से भी, जो हाथ से होना चाहिए काम, मैं पैर से भी कर सकता हूँ, और ये माने जो आत्मविश्वास ये होना चाहिए। यहाँ पर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा कन्ना समा है, और इन लोगों को ये मैंने कहना चाहता हूँ, जे डोंट गिव अप, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और इसका कोई सब्स्टिट्यूशन भी नहीं है और कभी भी नहीं होगा। मैं ये भी कहना चाहता हूँ यहाँ पर, आज स्पोर्ट्स का कोई जात नहीं होता, धर्म नहीं होता है। मैं ब्लड के साथ हमेशा इसको रिलेट करता हूँ। ब्लड का कोई धर्म जैसा नहीं होता है, कोई जात पात कुछ नहीं होता है, कौन ट्राइबल है नॉन ट्राइबल कुछ नहीं होता है भाई। स्पोर्ट्स है, जो काम दिखाएगा, जो अच्छा रिजल्ट दिखाएंगे और त्रिपुरा का नाम जो रोशन करेंगे, ही और शी इज द स्पोर्ट्समैन। काम से मतलब है, डोंट गिव अप, यू जस्ट इमेजिन गॉड हैज सेंट यू। मैं जितना यहाँ पर गार्जियंस है, मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसीलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने अपने बच्चे को क्या एक ऐसा लगता है ये बोझ है हमारे लिए, लेकिन आप देखिए कुछ दिन के बाद धीरे धीरे जब वो बच्चा अपना जो आत्मनिर्भर होना था, सेल्फ रिलायंट जिसको कहते हैं, ये जब हो जाता है तो इनका भी बोझ माने जो सोच रहे थे ये कम हो जाता है। नहीं, मैं ऐसा बहुत सारा इंस्टेंसेस है, और कोई किसी प्लेटफॉर्म में मुझे बता रहे थे, जो कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए ही और शी कैन नॉट डू इट। उनको छोड़ दो, आप उनको छोड़ दो, जो जाइए ऑटो रिक्शा से जाइए आप, और ऑटो रिक्शा से जहाँ काम करना था वहाँ काम करके फिर लौट के भी आया। ऐसा भी इंस्टेंसेस है। हम लोग क्या करते हैं, अरे डरते हैं मेरे बच्चा तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जब तक इसका कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा, तब ये जितना भी हम लोग यहाँ पर स्पोर्ट्स का इवेंट्स करें, कुछ भी करें, वो फायदा नहीं होगा। इन लोगों को छोड़िए, अपने ऊपर वो करेंगे। जो आदमी जिसका पैर नहीं है वो हाथ से काम कर रहे हैं, और जिसका हाथ नहीं है पेट से काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अपने आप में ये विश्वास आ गया, डिग्निटी आ गया, आत्मविश्वास बढ़ गया। और जब उसको माने सोशियो इकोनॉमिकली अब स्ट्रेंथनिंग करोगे, तो ये जो गार्जियन सब है, कोई तो यहाँ पर जिंदगी भर जिएगा नहीं, लेकिन जाने के पहले कम से कम सोचेंगे, जो माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश को चला रहे हैं, और हमारा त्रिपुरा गवर्नमेंट, ये जो डबल इंजन का सरकार, यहाँ पर इन लोगों का गार्जियन हमारे पास है, और उन्होंने हमारे बच्चे लोगों को देखेंगे, और ये सोच के आप आराम से हम लोग जा सकते हैं ऊपर। तो ये काम, ये विश्वास हम लोग के यहाँ है। और
और एक त्रिपुरा में प्रॉब्लम है, नॉर्थ ईस्टर्न जोन तो ज़्यादा है, बाकी जगह में भी है, और इसके लिए कि जीरो टॉलरेंस, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी रोज ही हम देखते हैं, जीरो टॉलरेंस ड्रग एडिक्ट को लेके हमेशा बोलते रहते हैं। जितना यहाँ पर अभी स्पोर्ट्समैन है, मैं खाली पारा ओलंपिक्स का जो यहाँ पर बंदोबस्त किया है ये तो है ही, बाकी सभी स्पोर्ट्स में जो जुड़े हुए हैं, एक चीज मैं कहना चाहता हूं, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो कम से कम प्रैक्टिस के पहले 15 मिनट से 20 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए। एक बार मेडिटेशन करो, देखो अपने आप को पहचानो, ये मेरा पास क्या है, और उस हिसाब से आप जब अपना इवेंट का प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस के बाद आप जब खत्म हो जाएगा, जब रिलैक्सेशन का कंडीशन आएगा, उसमें भी फिर आप कम से कम 10 मिनट के लिए फिर मेडिटेशन करना चाहिए। जब ये सब करोगे तब अपने आप को फुल फ्लेजेड एक इंसान होके आप काम कर सकते हो, तब जाके ये ड्रग एडिक्शन में आप नहीं जाओगे। बहुत मैंने देखा, यहाँ पर एक लड़का बता भी रहा था, ऐसे ही ड्रग एडिक्शन के अवेयरनेस प्रोग्राम में खुद भी गया था, बिलोनिया में, बहुत दूर है यहाँ से। वहाँ पर वो बता रहे थे, मैं आज एडल्ट पर्सन है, अबाउट 35-36 ईयर्स ओल्ड। क्या बता रहे थे, जब फुटबॉल गेम हो रहा था वहाँ पर, तो हाफ टाइम में वो बता रहे थे सबको कि मैं हमेशा, आई वॉज ए वेरी गुड, ही वॉज टेलिंग दैट आई वॉज ए वेरी गुड स्टूडेंट इन माई स्टडी, आई वॉज ए वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, लेकिन हमेशा मेरे साथ एक ही है, मेरा दिमाग में चलता था कि मेरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन चाहिए, हर जगह जाएंगे बैठेंगे सब मेरे तरफ देखना चाहिए। तो ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कैसे आएगा, कोई देखता भी नहीं है, अरे तुम कौन हो, तू कौन है। तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के लिए ड्रग्स लेना शुरू किया। अब ड्रग्स लेने से क्या होता, फीलिंग ऑफ वेलबींग आता है, अपने आप को समझते हैं, कुछ भी बोलेंगे मैं ही पूरा दुनिया का राजा हूँ। तो ये फीलिंग्स जब आ जाता है उनको, क्या हुआ, ये धीरे धीरे और बढ़ते जाया, और बहुत साल वो ड्रग एडिक्टेड होके जब इनका बहुत ही हालत खराब है, तब जाके समझ आया, और ये लौट के आके यही अपना बात बता रहे थे। हमारे यहाँ ये ड्रग एडिक्शन के लेके पूरा एक कॉन्स्पिरेसी है, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है कि देश को कैसे दुर्बल किया जाए। ये ऐसा नहीं है, हम लोग आप देखो, हम लोग सरकार बनने के बाद आरबीआई कम्युनिस्ट वाले जो 35 साल बिता रहे हैं, उनका एलओपी उस दिन बता रहे थे। मैं एक बार सोचता हूँ जे कि जो क्या नाम है उसका, जितेन बाबू एलओपी क्या बता रहे थे कि 3-4 बोतल हम लोग के टाइम में फेंसिडिल मिलता था। अरे क्यों झूठ बोलते हो भाई, हम लोग जब ये 2018 में हम लोग सरकार बनाए, तुम्हारा ये सब जो काम तुम लोग किए हो ये हमारे ऊपर अभी आ रहा है, ये तो आप तुम लोग के समय ही हुआ था। हम लोग तो अभी पकड़ रहे हैं 200%, 131% हम लोग ऑलरेडी ड्रग पकड़ा। आप लोग के टाइम में तो पकड़ते नहीं है, क्योंकि सब अभी क्या लोग थे, आप लोग इन्वॉल्व है। तो इसमें बहुत लोग, ये जो कल्चर, कम पैसा माने खूब, इसके लिए तो इन्वेस्टमेंट का जरूरत नहीं है। और ये बांग्लादेश में भी प्रचार होता है, म्यांमार होके, आसाम होके, और मेघालय होके, त्रिपुरा में आता है। लेकिन बार बार मैं पुलिस को मैंने बताया, फ्री हैंड दिया मैंने, इससे काफ़ी यहाँ पर मेरे रिपोर्टर्स सब बैठे हुए, मीडिया पर्सन, वो जानते हैं कि कितना डिस्ट्रक्शन के मामले में भी हम लोग हाईएस्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इतना डिस्ट्रक्शन हम लोग कर रहे हैं। लेकिन करें क्या, क्योंकि बहुत लोग इसमें, इतना बड़ा चेन है। मुझे याद है जब मैं दिल्ली में
गया था, हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी बता रहे थे, जो स्कूल है, स्कूल के सामने जो छोटा सा दुकान है, दुकान वाले को पकड़ने से फायदा नहीं होगा, इसको चेन देके देखोगे कहाँ है, रूट कहाँ है, वहां तक पहुंचना है आपको। और कंप्लीटली जीरो टॉलरेंस हम लोगों को अपनाना चाहिए। 2-3 जनरेशन खत्म हो गया, और इसके लिए एक ही अवेयरनेस तो हो ही रहा है। हम जानते हैं अवेयरनेस, अगर ये इंजेक्टेबल ड्रग आप लोगे तो HIV हो सकता है। HIV होने के बाद अगर ट्रीटमेंट प्रॉपरली ना ले या इसको ना समझे, स्क्रीनिंग में नहीं आया, तब ये जाके एड्स हो जाता है। और शरीर का जो कोई भी बाहर से कोई भी आक्रमण, ये वायरस हो या ट्यूबरकुलोसिस हो या इवन कैंसर से शुरू करके बहुत सारे शरीर में जब ये आ जाता है, तो ये कोई भी इन्फेक्शन हो, इसके अगेंस्ट में फाइट करने के लिए ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उनका टारगेट है WBC को अटैक करना। तो वाइट ब्लड कॉर्पस्कल ख़त्म करने के बाद जब उस फैमिली में आप देखो क्या है, मैं जब अपना इलेक्शन का कैंपेन में मैं यहाँ डोर टू डोर चलता है, बहुत छोटा सा एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, बहुत सारे जगह मैंने कहा ऐसा ऐसा मैं तो आया हूँ वोट के लिए। आप बोल रहे हैं आप वोट तो हम आपको देंगे, लेकिन मेरे बच्चे को बचाइए, आप मेरे बच्चे को बचाइए। तो ये सब कौन कब क्या है? आप कह रहे 3-4 खाली बोतल। यहाँ रिपोर्टर लोगों को बोलता हूँ, न्यूज़पेपर निकालो अपना पुराना, क्या क्या होता था, हैं? और जो ये सब काम में जोड़े हुए थे, सोए हुए थे, याद है ना उसका पूरा शरीर में रुपया रुपया, और वो अपने आप को प्राउड भी फील कर रहे थे। ये सब भूल जाते हैं लोग। इन लोगों के लिए व्हाइट पेपर हम निकालने वाले हैं, क्या क्या किए हैं। खून, संतरास, रेप, पोस्ट इलेक्शन प्रॉब्लम, प्री इलेक्शन, अग्नि संयोग, ये सब हमेशा। तो इससे अब त्रिपुरा में आप देखो शांति बरकरार रहा। और यह कर्नल साहब को मैं बताना चाहता हूँ कि पूरा 28 राज्य में त्रिपुरा नीचे से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में 3rd पोजीशन है। मैं जीपी जो हमारे DGP साहब और DGP एंड IG इन लोगों का कॉन्फ्रेंस 4-5 दिन पहले मैंने किया था, और जो रायपुर में माननीय प्रधानमंत्री जी थे, होम मिनिस्टर थे, तो वहाँ पर भी सेम हुआ था। तो इसका फॉलोअप हम कर रहे थे। मैंने कहा आपको फ्री हैंड दिया, जो करना है आप कीजिए, और करने वाले हैं ये लोग, काम कर रहे हैं। आप रोज देखते हो न्यूज़पेपर में, और कहते हैं 3-4 बोतल आते हैं, पकड़ लिए तब ना पकड़, अभी पता लगता है। आप लोग तो पकड़ते नहीं थे, हम लोग तो पकड़ रहे हैं। पकड़ के मतलब क्या हुआ? आप कोविड, सपोज फॉर एग्जांपल कोविड में आप अटैक्ट हो गए हो, तो त्रिपुरा में या किसी केरला में कितना कोविड हुआ ये कैसे पता लगेगा? स्क्रीनिंग करेंगे तब ना होगा। तो जैसे हम लोग पकड़ रहे हैं, आप लोगों के टाइम में तो ये सब होता ही नहीं था। चाइना से ही तो आया है वो, ये वायरस चाइना से आता है। अब इसके मामले में अगर चाइना से ये वायरस आता है बोलने से, बोले अरे इनके ऊपर क्यों दोष दे, तो ये समाजतांत्रिक देश है। मैंने कैसे 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 बिहेव, मैंने इनका माइंड सेट आप देखो क्या करते रहते हैं ये लोग। मैं हंसता हूँ कभी कभी। आप मसनद में बैठने के लिए क्या क्या कर रहे हैं भाई। अभी कब किसके साथ हाथ मिलाएंगे कोई भरोसा नहीं है। कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, जो इन लोगों को बार बार खून किया, हजारों खून किया। मैं हर जगह में बोलता हूँ, कल्याणपुर में मैं कुछ दिन पहले गए थे, 26 लोगों को ये ATF ने मासूम बच्ची से शुरू करके बुढ़ा बुढ़ी तक सबको रात को आग जला के गोली से मार दिया। साउथ त्रिपुरा में आप जाइए, अनडिवाइडेड 69% हैव बीन किल्ड बाय देम। ये लोग राइट किया था त्रिपुरा में, इनके टाइम में 3000 लोग मारा गया है। ये छोटा सा प्रदेश है, इसीलिए नेशनली कोई चिंता नहीं है। बाहर में बड़ा अगर स्टेट है, 10 आदमी भी मर जाता है, हल्ला हल्ला हल्ला, पार्लियामेंट से शुरू करके हर जगह।
हमारा त्रिपुरा में 3000 ये इस राइट में जाति जनजाति मिलके जिस तरह हुआ था, इसके पीछे कौन था? इनका ही मिनिस्टर, जो चीफ मिनिस्टर, वो क्या कह रहे थे, निपेन चक्रवर्ती, मैं अगर जनजाति होता तो मैं उग्रपंथी बनता। तो इसका मतलब है आप लोग ये सब क्रिएट किए हो, आप लोग ये सब किए क्यों? खून, संतरास, अग्निसंयोग, रैप, ये सब आप लोग शुरू किए हो। आप लोग के टाइम में ये जो टेररिज्म स्टार्ट किए हो, आपके टाइम में ये जो ड्रग एडिक्शन आप लोगों के टाइम में शुरू हुआ, आपके टाइम में पोल्यूटेड जो पॉलिटिक्स आप लोग के टाइम में शुरू हुआ। और हमारा जो सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप में जो चल रहा है, पूरा देश नहीं पूरा वर्ल्ड में अभी सब ताक रहा है, देख रहा है जे माननीय प्रधानमंत्री जी किस तरह देश को चलाते हैं। जब कोविड हुआ था 100 कंट्री को, हमारा ये कहते हैं ना जे 1 अर्थ 1 वर्ल्ड, इस हिसाब से 100 जो हमारा जो इंडिजिनस जो एंटीवायरल जो हम लोग निकाले थे माननीय प्रधानमंत्री जी कारण, उनके पास हम लोग दिए थे, सभी देश में फ्री में दिए थे। तो इसीलिए मैं समझता हूँ जे ये ड्रग्स से अगर दूर रहना है, सभी को स्पोर्ट्स में आना चाहिए। और स्पोर्ट्स का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, मैं बता रहा हूँ। और स्पोर्ट्समैन बाहर से दूर से देखने के बाद भी, वो कितना भी उम्र हो जाए, वो देखने से लगता है ही मस्ट हैव प्लेड समथिंग, अदरवाइज उनका फिगर ही बोलते हैं। वो कर्नल साहब बता रहे थे जो 65 ईयर्स से ऊपर अगर कोई हो, इनके लिए भी। कर्नल साहब आपका जानकारी के लिए मैं बताता हूँ, मेरा यह अभी उम्र जो है 71 प्लस है, 71 प्लस है। तो आप 65 नहीं है, आपसे धीरे धीरे और आगे बढ़ाइए, तब जाके हम लोग, हो सकता है पैदल में चलने में प्रॉब्लम होगा। और ये कारण बिकॉज आई वॉज ए स्पोर्ट्समैन। जितना सब खेलना चाहिए, खेल कूद में अपने आप को पहचानोगे, राज्य को पहचानोगे, देश को पहचानोगे, और ये बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। मैं आज एक चीज़ फिर से एक सेंटेंस बोल के मैं अपना बानी विराम देता हूँ। बहुत लंबा भाषण यहाँ पर सभी ने दिया, मैं एक ही सेंटेंस में बताऊँगा कि ये जो मैंने बताया कि स्पोर्ट्स का कोई जाति धर्म नहीं होता है, ब्लड का कोई जाति धर्म नहीं होता है, और ये तभी संभव होगा जब हम लोग सब यूनाइटेड रहेंगे। कॉकबोरक में कहते हैं थानसा, हम लोग इस थानसा मतलब जाति जनजाति, हमारा महिला पुरुष बच्चे, उसके बाद माइनॉरिटी, ये मणिपुरी, सब मिलके अगर हम लोग एक साथ रहेंगे और एक न्यू इंडिया माननीय प्रधानमंत्री जी नाम दिए हैं जब ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में, ये इंडिया कब बनेगा? जब पूरा राज्य न्यू होगा तब ना होगा। इसलिए न्यू त्रिपुरा बनाने के लिए वी शुड बी ऑल टुगेदर, एंड दिस इज कॉल्ड थंगा। विद दिस मैं समझता हूँ 2 दिन का ये जो कार्यक्रम है स्पोर्ट्स का, इसका आई विश दिस स्पोर्ट्स इवेंट्स ए ग्रैंड सक्सेस। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি তথা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা মহাশয়কে তার এই মূল্যবান বক্তব্যের জন্য।